Good morning, students. Today I am going to teach you grammar lesson, that is present tense, from page number 21. देखो पेज नंबर 21 निकालो. आज तुम लोगों को हम सिखाएंगे प्रेजेंट टेंस. अच्छा, प्रेजेंट टेंस कब हम यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो व्हेन कैन प्रेजेंट टेंस बी यूज्ड. कब हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट टेंस शोज एक्शन डन इन प्रेजेंट. जो वर्तमान समय में जो हम काम कर रहे हैं, द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड एट प्रेजेंट, वर्तमान समय पे जो हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. टेंस, as you know, there are three types of tense: present, past, future. So in this lesson we will learn about present tense. So present tense shows action done in present, जो वर्तमान में हम काम करते हैं. अच्छा, present tense can be divided into four parts. present tense को हम चार भाग में भाग करते हैं. एक होता है simple present tense, जिसको हम बोलते हैं present indefinite tense. Number two, present continuous tense, और जिसको हम बोलते हैं present progressive tense. Okay? Number three, present perfect tense, and number four, present perfect continuous tense. So these are the four tenses that you will learn in present tense. Present tense में चार भाग हैं: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So at first we will start with present indefinite tense, or that is called simple present tense. Okay? I think this lesson is really going to be very much important for you. Simple present tense, और जिसको हम बोलते हैं present indefinite tense. So at first we will know when simple present tense can be used. पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो डेली हैबिचुअल एक्शन. मतलब जो काम हम करने में अभ्यस्त हैं, जो काम हम डेली करते हैं, and actions with universal truth. जो काम चिरंतन सत्य है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे कि देखो, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल. ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन. ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है. मतलब यह है यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य है. इट कैन नेवर बी चेंज्ड, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है. जैसे कि मैंने बोलता हूं, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. मैं सुबह स्कूल जाता हूं. तो ये देखो, ये डेली हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है. डेली हैबिचुअल एक्शन, ये नहीं डेली यानी दैनिक, रोज. हैबिचुअल मतलब अभ्यस्त. रोज का
ऐसा काम जो करने में हम अभ्यस्त हैं, that we get habituated in doing. So always remember, simple present tense is used to show those actions which we do daily. वो सब काम जो हम रोज करते हैं, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी जो चिरंतन सत्य है जो कभी बदलने वाला नहीं, जैसे there are 8 planets in the solar system, sun gives us light. ये जब सेंटेंस है, ये सेंटेंस है simple present tense. Simple present tense. Okay, you will, I hope to put down the definitions from here, though I will give you some definitions writing on your notebook. मैं तुमको कुछ definitions भी दूंगा, don't worry. Now I am giving you some formats. What is the format of building this tense? देखो जैसे मैथमेटिक्स का यानी मैथ का कुछ फॉर्मूला होता है, you need to follow some format. तुमको भी कुछ फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि इस टेंस को तुम बना पाओ. जैसे पहले तुमको लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद जो है मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में मैं लिखता हूं एस और ईएस विद एस और ईएस एडेड टू मेन वर्ब इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर plus object plus complementary. Dear students, I will tell you about subject, about main verb and helping verb, about complementary, about object. Because if you don't understand them, these little things, if you don't understand, you will not be able to make out what simple present tense or what any other tense is. So it is quite important for you to know the little things like subject, main verb, helping verb, object, ये जानना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है. देखो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के मदद से तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हो. जैसे कि देखो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मानो मैं बोल रहा हूँ कि मैं रोज सुबह 8 बजे इंग्लिश पढ़ता हूँ. मैं रोज सुबह 8 बजे इंग्लिश पढ़ता हूँ. तो वेयर इज द सब्जेक्ट? जब तुम हिंदी में बोलोगे तो लाइन को फॉलो करोगे, बट व्हेन यू विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जब तुम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करोगे, देन यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट. अब मैं सुबह रोज 8 बजे इंग्लिश पढ़ता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं यानी आई. अब मैं सुबह रोज 8 बजे इंग्लिश पढ़ता हूँ, इसमें मेन वर्ब क्या है? मूल क्रिया पढ़ना, पढ़ मेन वर्ब, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड. ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि देखो एस और ईएस एडेड टू मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ एस ऐड हो जाता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, कोई एक नाम, मानो राम, रोहित, स्नेहा, रिया, कोई ऐसा एक नाम, ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए हियर वी कांट ऐड एस विथ मेन वर्ब रीड. हम लोग मेन वर्ब रीड के साथ एस ऐड नहीं कर सकते. अब उसका ऑब्जेक्ट वर्ड से क्वेश्चन करो, मैं क्या पढ़ता हूँ? इंग्लिश. आई रीड इंग्लिश. तो सब्जेक्ट हुआ आई, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ रीड. देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठ गया. रीड के साथ एस और ईएस नहीं बैठा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. अगर यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, मैंने ही होता, राम होता, शाम होता, कोई एक नाम होता तो रीड्स होता. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसलिए एस नहीं लेगा. आई रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग, सुबह, डेली, एवरी मॉर्निंग भी बोल सकते हो. आई रीड इंग्लिश एवरी मॉर्निंग. You can also say I read English in the morning daily. So in this way you will build up present indefinite tense or simple present tense. It is very important for you. Okay? So I hope you keep on watching the video, follow the video that will come and that will be continued. Okay? So I think it is enough for you. In this video I told you about simple present tense. Okay? Good day.